Good morning, sir. Good morning, Ankit. Good morning. सर किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा? Oh, I posted in the group, na? Acha, okay, sorry. Yeah, You joined late. You joined late. That's the reason. Topic is how to form blueprint of 2022. Means how we have to plan the coming new year so that it can become the most effective one. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Yeah. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Gaurav. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Rupesh sir. So there are so many of them. Rupesh sir, I can see. Pranav sir is there. Ram Babu sir is there. Aryan has joined. Gaurav has joined. Good work. Good work. We'll wait for 1 or 2 more minutes and then we can start. When it's offline, then everybody can join. So it's I think going to be more effective than on. Actually, now I am thinking of doing it online only because anyway this third wave has started and our work is going to be mostly online. So okay, Ranjit sir also has come. Very nice. I will only request that switch on your camera for some time because recording is going on. At least we can record the faces for some time. Then you can again switch off it. If you want to be in the video from start to end, then keep it on. It all depends how nicely you have readied yourself. Okay, so I think now we can start. We have total 9 participants. So, good morning, all of you, to the new platform that is Currencia Foundation, which we have formed. Last meeting, I think only we 3 were there, myself, Rupesh sir and Ranjit sir. And we met at Deja Vu School, I think on 19th of December, right? And 14th of December, we have founded this company. We got the approval. Good morning, sir. Good morning. So I was thinking since then, how कैसे हम इस प्लेटफॉर्म को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि लोग जब मैं बोलूं कि हाँ भाई प्लीज कम एंड ज्वाइन फॉर द मीटिंग ऑन संडे, तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो लोग इसमें आना पसंद करें. तो जब तक आपको किसी प्लेटफॉर्म से वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक आप आना पसंद नहीं करेंगे. सिर्फ आकर के बैठ करके आजकल सिर्फ ज्ञान काम नहीं करता है. ज्ञान के साथ साथ कुछ फायदा होना चाहिए, सब लोग आते हैं. सो इसका जो अकाउंट ओपनिंग का काम है वो ऑलरेडी इट्स गोइंग ऑन. HDFC में हम लोग अकाउंट खोल रहे हैं. आई थिंक बाई मंडे ट्यूसडे मीन्स कल परसों तक ये अकाउंट नंबर आ जाएगा हमारा. देन जो मेंबरशिप फी वगैरह है वो भी हम इसमें चार्ज करने वाले हैं. बिकॉज फ्री का कोई मतलब नहीं है. मतलब वो लगता है कि भाई ठीक है गए नहीं गए. अगर जेब से 100 रुपए भी निकलेंगे महीने के तो विल थिंक कि भाई पैसा पेमेंट किया है, लेट्स गेट समथिंग आउट ऑफ इट. तो पहले आई विल टेक यू थ्रू द ब्लूप्रिंट ऑफ 2022 जो मैंने बनाया है, विच यू कैन ऑल्सो मेक इट फॉर यू. एंड देन उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने फाइनल चीजों पे
कि इस कोरोना में व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ फॉर ऑल टीचर्स, जितने भी टीचर्स यहाँ पर हैं, व्हाट आई एम थिंकिंग. सो लेट मी फर्स्ट टेक यू थ्रू द ब्लूप्रिंट. 1 minute. Yes, it's done. Okay. Right. So now you can see the screen, Carencia Foundation. We are having 3 words to define: collaborate, learn and grow. कोलैबोरेट का मतलब होता है कहीं पर आकर मिलकर काम करना. तो सबसे बड़ी बात क्या है कि दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ टैलेंट पूल. सब लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे सबकी पकड़ है. सब लोग साथ में पहले मिल करके लर्न करें कैसे इस लाइफ को अच्छे से जीना है, कैसे अपने आप को डेवलप करना है, कैसे जो हम हमारे दिमाग में जो हमारा एम है, ड्रीम है, उसको अचीव करना है. And then finally, when we collaborate and learn, then we can grow. That is the, we can say, motto of this foundation. Carencia, एक बार मैं वापस define कर दूं कि why we have put the name Carencia. So Carencia is a Spanish word. और Carencia का मतलब होता है कि जब बुल फाइटिंग होती है, तो बुल फाइटिंग में जो हमारे जो बुल फाइटर्स हैं, उनका उद्देश्य होता है. अच्छा, आवाज किसी को नहीं आ रही है लगता है. अब सबको आवाज आ रही है क्या मेरी? राम बाबू को नहीं आ रही. आवाज तो आ रही है. आवाज आ रही है. ओके, यानी कि मेरी ओर से प्रॉब्लम नहीं है. फिर जिनको नहीं आ रही है मतलब वहां कहीं देखना पड़ेगा, नेटवर्क इशू. तो जब बुल फाइटिंग होती है, तो बुल फाइटर का काम है कि बुल को बिल्कुल थका करके उसको बिठा देना. और जो बुल है उसका पर्पस होता है कि मैं जो बुल फाइटर है उसको मार दूं. और मार दूं मतलब सिर्फ चोट नहीं पहुंचाऊं, जान ले लूं. अगर आप देखेंगे ढंग से तो बुल जो है वो जान लेता है. कई लोग उसमें मर चुके हैं अभी तक. तो जो रिंग होता है जिसमें फाइटिंग होती है, उस रिंग का कुछ ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है जहां जाने के बाद द बुल बिकम्स इनविंसिबल. मतलब उसको जीतना इम्पॉसिबल. वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, वो बहुत ही ताकतवर हो जाता है. सो पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं करेंसिया. बाद में धीरे धीरे करके दिस टर्म इट केम इन इंग्लिश आल्सो, और इसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि एक ऐसी जगह जहां आने के बाद यू फील चार्ज्ड, यू फील एम्पावर्ड, यू फील योर ओन. आपको लगता है कि बस यही जगह है जहां पे आने के बाद आई फील कि जो कुछ मेरे ख्वाब हैं, मेरे सपने हैं, मेरा एम है, आई कैन अचीव दैट. सो ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि ये फाउंडेशन ऐसे काम करे कि हम सब यहाँ आने के बाद फील करें कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो कुछ भी मेरे लाइफ के चैलेंजेस हैं उसका सलूशन, उसका कोई ना कोई बढ़िया हल मुझे मिल पा रहा है. आगे बढ़ते हैं. इसमें हम किस किस को ऐड करने वाले हैं. सो वंस अगेन आई विल डिफाइन. सबसे पहला तो है टीचर्स. ये मेनली इट इज फॉर टीचर्स, बिकॉज टीचर्स के लिए कहीं कोई सबका अपना अपना ग्रुप है. अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर्स का अपना एक ग्रुप होता है, दे डू सो मेनी सेमिनार्स. वकील का अपना होता है, बार काउंसिल, दे डू दैट. बट टीचर्स का कहीं कुछ ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है फॉर डेवलपमेंट. ऐसे हमारी मांगे पूरी करो वाला बहुत कुछ है, लेकिन हमारी मांगे पूरी करो से तो अच्छा है कि हम अपने आप को इतना डेवलप कर लें कि हमें कहीं कुछ हड़ताल करने की या मांग करने की जरूरत ही नहीं पड़े, हमारा डिमांड इतना बढ़ जाए. तो टीचर्स को ऐड करेंगे, उनको डेवलप करेंगे ताकि उनको कभी भी ये महसूस ना हो कि अरे यार मैं कहाँ से बन गया टीचर, कुछ और बनता. देन वी विल ऐड स्टूडेंट्स. ऐसे बच्चे जो कि 9th 10th या उसके ऊपर के क्लासेस में हैं, जो कि अब धीरे धीरे जॉब मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं. सो हाउ दे कैन ऐड वैल्यू इन देयर पर्सनालिटी, ताकि जब वो जॉब में उतरें उसके पहले ही उनकी इतनी शानदार मार्केटिंग हो कि लोग उनको हायर करने के लिए तैयार बैठे हों. देन वी विल ऐड पेरेंट्स, बिकॉज उनका होना जरूरी है ताकि जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं बच्चों को डेवलप करने में, उसका हम उनको हल दे सकें. स्कूल ओनर्स, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर गुड क्या बोलते हैं आपको, गुड ह्यूमन रिसोर्स, गुड टीचर्स, तो उनको भी ऐड करेंगे.
जॉब सीकर्स जो जॉब ढूंढ रहे हैं, एंड प्रोफेशनल्स जो कि जॉब कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर सम बेटरमेंट, सम ग्रोथ इन देयर करियर। तो ये सब आप अगर देखेंगे तो हर जगह मेन जो बात है वो है स्किलिंग। कैसे हम स्किलिंग करें, कैसे अपने आप को डेवलप करें, कैसे अपने डिमांड को बढ़ाएं, कैसे अपनी मार्केटिंग करें, कैसे अपनी ब्रांड वैल्यू। हमारी ब्रांड वैल्यू क्या है? हमारा नाम अपने आप में एक ब्रांड है। यानी कि अगर बात चले कि भाई शहर में फिजिक्स कौन पढ़ाता है, तो जो हमारे टीचर यहाँ बैठे हुए हैं जिनका फिजिक्स सब्जेक्ट है उनका नाम आए। भाई अगर पढ़ना है फिजिक्स उनके पास जाओ। ये मतलब अपना सबका अपना अपना एक यूनिक स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाए, जिस कारण वो अपने कम से कम शहर में तो उनको लोग जानना शुरू कर दें। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये 6 तरह के लोगों को हम इसमें ऐड करेंगे। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक था, क्विकली विल गो थ्रू माय ब्लूप्रिंट फॉर अ ब्यूटीफुल 2022। मैं समझिए कि नया साल शुरू होने के 1 हफ्ते पहले से आई वॉज थिंकिंग कि भाई हर साल नया साल आता है, अगर आप देखेंगे तो 31st में और 1st में कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे मॉर्निंग को नींद खुलती है, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, वापस लौटते हैं, खाते पीते, काम करते, सो जाते हैं। तो 2022 में ऐसा क्या नया हो जाएगा जो कि हमारे लिए बोलते हैं कि ये नया साल हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा? अरे बड़ा अच्छा कैसे होगा? जब तक हम कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो जो साल 2021 था वही 22 होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानिंग। तो 2022 हमारे लिए अच्छा हो, इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने एक छोटा मोटा प्लानिंग करना शुरू किया है, अभी काफी इनिशियल स्टेज पे है, बट आई विल शेयर विथ यू, ताकि आप इसकी मदद से आप भी अपनी अपनी प्लानिंग कर सकें। ये मान के चलिए, जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे पूरे साल की, पूरे साल में जो आपको अचीव करना है आप अचीव नहीं कर पाएंगे। राइट? आगे बढ़ते हैं। सो 10 पॉइंट से आई एम गोइंग टू डिफाइन ब्लूप्रिंट ऑफ 2022। नंबर 1 है विंस ऑफ 2021। आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑल्सो, पीडीएफ में भेज देता हूं, इसलिए कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम ठंडे दिमाग से बैठ जाएं, आधे घंटे का समय ले लें, अपना फोन, अपना कॉल, अपने जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनसे बोलें कि भाई 1 घंटा मुझे अकेला छोड़ दो, और हम कहीं पर नोट करें कि 2021 में हमने क्या क्या अचीव किया। विंस, जीत, 2021 की जीत क्या क्या हुई। तो मैंने ऐसे क्विकली अगर देखना शुरू किया कि भाई मैंने क्या क्या जीत हासिल की 2021 में, तो मुझे मालूम हुआ कि भाई मैंने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया। जब मैंने प्लेटफॉर्म शुरू किया था, आई वॉज चार्जिंग 50 रुपीज पर स्टूडेंट पर वीक। 50 रुपीज पर स्टूडेंट पर वीक से मैंने शुरू किया था, एंड नाउ आई एम चार्जिंग 2000 रुपीज पर स्टूडेंट फॉर 40 मिनट सेशन। तो ये ग्रोथ आया इसके अंदर में, बिकॉज जब आपको वैल्यू मिलेगी तो आप वो अपना जो आपका जो चार्जेस है वो आप क्लेम कर सकते हैं, आप मांग सकते हैं। सो नाउ आई हैव अ रोबस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर माय सर्वाइवल। मुझे अब दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कोरोना आए कोरोना जाए, मुझे मालूम है कि मेरे अपने क्लासेस चलते रहेंगे और मेरी आमदनी आती रहेगी। ये हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी उतार चढ़ाव से हट करके एक अर्निंग का जरिया हमारे पास में होना चाहिए। दैट इज वन विन ऑफ 2021। दूसरा, टीचर्स की पाठशाला हमने शुरू की थी दिसंबर 2020 में। 1 साल में इतना बढ़िया ये काम किया, इतना अच्छा हमको लगा कि हम लोगों ने इसको एक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसका अपना एक लीगल एंटिटी है, ताकि अब हम लोगों को आराम से इसमें जोड़ पाएंगे। तो करेंसिया फाउंडेशन इज सेकंड विन। थर्ड, आई रोट अ बुक जो कि अब पब्लिशिंग में चली गई है, शायद आने वाले 1-2 महीने में वो छप करके आ जाएगी। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जब आप एक किताब अपनी छपवा लेते हैं तो एक थोड़ा सा आपका जो कद है वो बढ़ जाता है कि भाई अब ये लिखते भी हैं, ये किताब भी मार्केट में है। देन एक स्कूल में मैंने ट्रायल के लिए इंग्लिश लैब चलाना शुरू किया था, वो काफी सफल रहा। हालांकि अगेन कोरोना के कारण वो बंद हो गया है, बट कहीं ना कहीं उसको एक हमने शुरू कर दिया, तो अब उसको रेप्लिकेट करना, उसको एक्सपैंड करना आसान है। देन माय वीकली डिस्कशन विद धीरज जो मैं करता हूं अपने बच्चों के लिए, वो पिछले काफी महीनों से चला आ रहा है।
और हर दिन पे वो मजबूत हो रहा है। एंड अपनी फैमिली के लिए, मतलब अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए भी मैंने एक वीकली डिस्कशन प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जो कि अपने आप में बहुत ही नई चीज थी। हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो हमारे परिवार के लोग हैं उनके लिए हम बहुत कुछ करना नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ भी हम देख सकते हैं कि क्या हम अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाए, जो भी हमारे अंदर क्षमता है उससे हमारे परिवार के लोगों को भी फायदा हो। सो दीज वर द विन्स ऑफ 2021 जो मैंने नोट किया है। अभी इसको मैं और ऐड कर रहा हूं और लिखूंगा, जितना आप लिखेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। सेकेंड, माई आइडियल 2022, मेरा 2022 में कैसा होना चाहिए, राइट? तो मेरी जो कंपनी है करेंसिया फाउंडेशन, जो हमारी कंपनी है, वो कहां तक जाएगी, जो मेरा डिस्कशन का जो प्लेटफॉर्म है वो कितना आगे तक जाएगा, यानी जो कुछ काम हमने 21 में किया वो अपने किन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, और हम क्या नया काम ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने एक दिमाग लगाया था, पहले भी हमने डिस्कस किया कि एक गुड वर्कर करके कंपनी है जहां पे हम दिमाग लगा रहे हैं, यानी कि लोगों को जॉब देना, स्किल करना और जॉब देना। तो हो सकता है कि एक बार जब काफी ज्यादा मेंबर्स इकट्ठा हो जाएं तो हम उसके ऊपर भी काम कर पाए। सब कुछ खेल नंबर का है, अगर अच्छे लोग जुड़ जाएंगे तो हम काम कर सकते हैं, वो हो सकता है। उसके बाद जो मेरा ऑनलाइन क्लासेस है उसको मैं और स्ट्रांग बनाऊं, वहां से और अपनी थोड़ी सी फी बढ़ाऊं ताकि मुझे वैल्यू फॉर मनी मिले, यानी कि अपने को डेवलप करने का एक अगेन मैंने पॉइंट बना लिया। माई आइडियल 2022 क्या करना है, माई 5 प्रायोरिटीज ऑफ 2022। बहुत सारे प्लानिंग रहेंगे पूरे साल के, बट सबसे ज्यादा 5 टॉप प्रायोरिटी क्या क्या है। जैसे नंबर 1, मेरा टारगेट है कि कम से कम 200 लोग इस फाउंडेशन से, इस कंपनी से जुड़े। दैट्स नंबर 1 प्रायोरिटी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम इसी साल में इस फाउंडेशन के थ्रू लोगों को जॉब देना शुरू करें। ये सारे मेरे अपने खुद के प्लान हैं कि मेरे 5 प्रायोरिटीज हैं जो हमें इस साल में करना है। नंबर 4 पे आपको आता है कि टॉप 5 वैल्यूज फॉर 2022। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे ये वैल्यूज, मेरे सिद्धांत ये रहेंगे। जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये जो हमने फाउंडेशन बनाया है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कितने पैसे आ रहे हैं, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, क्या काम हो रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि एक एक चीज सारे लोगों को जो से जुड़े हुए हैं उनको मालूम हो, ताकि उनको इस फाउंडेशन के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट आए कि नहीं, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होगा, यहाँ पर अगर हम जुड़ेंगे तो हमारा फायदा होगा। जो पैसे हम यहाँ पर लगाएंगे अपने, भले ही बहुत कम पैसा है, 99 रुपीज पर मंथ इज नॉट अ बिग मनी, बट वो पैसा सब कुछ सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, उससे मेरा फायदा हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी इज 1। रिस्पेक्ट, चाहे कोई मेरे से छोटा हो, गौरव और अंकित बहुत छोटे हैं मेरे से उम्र में, चाहे कोई मुझसे बड़ा भी यहाँ पर हो, सबको रिस्पेक्ट। किसी को ऐसा ना लगे कि भाई मैं तो उनसे उम्र बहुत कम हूं, मुझसे तो मेरी बात पूछी नहीं जाती, मुझसे राय ली नहीं जाती। यहाँ पर जो लोग जुड़ेंगे सबका रिस्पेक्ट होगा। सो ये कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिनको मैं इस पूरे साल में लेकर के चलने वाला हूं। 5 पे है माई हाई वैल्यू टारगेट फॉर ईच मंथ ऑफ 2022। जनवरी में क्या हासिल करना है, फरवरी में क्या करना है, मार्च में क्या करना है, हर महीने को कोई ना कोई टारगेट अपने आप को देना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसको अचीव कर पाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर कि भाई मेरा जो कंपनी है उसका सॉफ्ट लॉन्चिंग कब हो जाएगा, तो द मोमेंट वो हमारा अकाउंट बन करके आ जाएगा, वी विल लॉन्च इट, ऑफिशियली लॉन्च कर देंगे उसको। मेरा जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको कैसे और पब्लिकली हम लॉन्च कर सकते हैं, तो वो रखा है मैंने। कब मेरा जो गुड वर्कर वाला काम है वो कब शुरू होगा, तो आई हैव मेड जनवरी में क्या करूंगा, फरवरी में क्या करूंगा, मार्च में क्या करूंगा, ताकि जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक उसको मैं चेंज भी नहीं करूंगा। सो मेरे 12 हाई वैल्यू टारगेट फॉर ईच मंथ ऑफ 2022, ये नंबर 5 पे है। नंबर 6 पे ड्रॉइंग ऑफ माई आइडियल ईयर, मेरे पूरे 2022 की क्या कल्पना है दिमाग में। तो कल्पना यही है कि इस साल के अंत तक जो हमारा ये फाउंडेशन है वो इतना बड़ा हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए कि अब उसके बाद वहां पर फॉर्म भर के लोग बैठे हुए हैं वेट में कि कब हमको एंट्री मिलेगी, और जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं
हम आपस में फैसला करें कि भाई इसको लेना है या नहीं लेना है, इंटरव्यू करना है, देखना है कि वो हमारे इस फाउंडेशन के लिए पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनक्यूबेटर टैलेंट पूल बन जाए, ये मेरा एक पूरा का पूरा आइडियल ईयर का ड्राइंग है। दिस शुड बिकम अ बिग वन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। नंबर 7 है, हु मस्ट आई बिकम टू हैव द ईयर दैट आई वांट। जैसा मैं साल चाहता हूं अपने लिए, उसको पाने के लिए मुझे कैसा बनना पड़ेगा। जब तक, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जब तक आप चेंज नहीं करेंगे कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो फर्स्ट आई हैव टू चेंज, राइट। तो आई हैव टू बी मोर फोकस्ड, कहीं भी समय यहां वहां वेस्ट नहीं करना है। जब भी कुछ कर रहा हूं, कुछ ना कुछ इस फाउंडेशन के डेवलपमेंट के लिए कर रहा हूं, राइट। डिसिप्लिन, जो हमने डिसाइड किया कि भाई यहाँ मीटिंग होनी है, यहाँ मिलना है, तो जो डिसिप्लिन है उसके हिसाब से ज्वाइन किया, बातें की, जिसने जो काम लिया अपने जिम में कि सर ये काम मेरे जिम में है, उसने अपना वो काम पूरा किया, राइट। तो आई विल बी फोकस्ड, आई विल बी डिसिप्लिन्ड एंड आई विल बी मैनेजिंग माई टाइम वेल। 24 घंटे ही हम सबके पास में है, उसी से हमें हाई वैल्यू निकालना है। तो इस बार और ज्यादा टाइम को हम ढंग से मैनेज करेंगे। ये मेरा अपना, मैं क्या बनूंगा, हु मस्ट आई हैव टू बिकम टू हैव द ईयर दैट आई वांट, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि आई विल बी फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, मैनेजिंग माई टाइम बेटर। ये सब मेरे अपने पॉइंट्स जो मैं लिखे हुए हैं। नंबर 8 है, व्हाट गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स आई नीड टू सेलिब्रेट। मेरे अंदर ऐसी क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं जो या तो मैंने डेवलप किया है या मुझे भगवान ने दिया हुआ है, जिसको मुझे सेलिब्रेट करना है। अंत में हम आगे बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो औरों में नहीं होती है। जो भी सफल लोग हैं, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, उन सब में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो हमारे में नहीं है, मेरे में नहीं है, इसलिए मुझसे आगे हैं, राइट। तो जो मेरे पास खूबियां हैं उनको हम नोट करें और नोट करके उसकी सहायता से अपने को आगे बढ़ाएं। तो मैं नोट किया कि भाई आई ऑलवेज लव टॉकिंग टू पीपल। दोस्ती करना, लोगों को जोड़ना, लोगों के लिए काम करना मुझे पसंद है। तो शायद मैं इस अपने गिफ्ट को, टैलेंट को काफी कुछ सेलिब्रेट कर सकता हूँ, उससे फायदा उठा सकता हूँ। पिछले 6 साल में कभी भी किसी ने कहा होगा कि सर मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, मुझे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने किसी को ना नहीं बोला होगा। अपने हर संभव प्रयास करके मैंने कहीं ना कहीं टीचर को स्कूल, स्कूल को टीचर, होम ट्यूटर वाले को ट्यूशन, पेरेंट्स को होम ट्यूटर, सब करवाया होगा। तो कहीं ना कहीं ये मेरा एक टैलेंट है, मेरा एक गिफ्ट है जो मुझे अच्छा लगता है। इसके सहारे लोगों को जोड़ना और लोगों का फायदा करना। अगर लोगों का फायदा होगा, अपने आप मेरी टीम स्ट्रांग बनती चली जाएगी। नंबर 9 है, व्हाट आर द टॉप 5 हैबिट्स दैट विल सर्व मी द बेस्ट इन 2022। मेरे ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो कि मुझे 2022 में काफी हेल्प करने वाली हैं। तो मैंने पाया कि भाई सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो आपने शुरू किया था एक्सरसाइज और मेडिटेशन बिकॉज ऑफ कोरोना, उसको रोकना नहीं। किसी ना किसी तरीके से अपने हेल्थ को लेकर के यू हैव टू बी कॉन्शियस। वो एक हैबिट है जिसको छोड़ना नहीं है। बुक रीडिंग, जो किताब पढ़ने की हैबिट लगी है, उसको छोड़ना नहीं है। जब मौका मिले 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज किताबों को पढ़ते रहना। बिकॉज ज्ञान कहाँ से आएगा, कुछ पढ़ेंगे, कुछ किसी लोगों को जानेंगे, तभी आपको ज्ञान मिलने वाला है। और वर्कशॉप्स, जितना आप वर्कशॉप करेंगे, जितना आप लोगों से बात करेंगे, उतना ही आपका कम्युनिकेशन और स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो ये कुछ 2-3 हैबिट्स मैंने अपनी लिखी कि मुझे इसके ऊपर और काम करना है, इसका इस्तेमाल करना है अपने 2022 को अच्छा करने के लिए। और नंबर 10 है, हाउ मे आई सर्व द वर्ल्ड इन दिस न्यू ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट, खासकर टीचिंग तो प्योरली एक सैक्रिफाइस वाला ही जॉब है। इसमें कुछ खास बंगला गाड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, ज्यादा सैक्रिफाइस है, लेकिन संतुष्टि है कि आप देश की, आप अपने समाज की सेवा कर रहे हैं। तो कैसे हम सेवा करेंगे, तो वापस मेरा ये ध्यान में है कि ये जो फाउंडेशन है, जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, ये सबके सब लोग इतने स्ट्रांग बन जाएं कि जो जहां रहता है वहां आसपास के लोग, उनके जानने वाले, उनसे बात करें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने एरिया का मेंटोर, गाइड बन करके उभरे, तभी इस फाउंडेशन का फायदा है।
तो आपके लाइफ में पहले क्या चैलेंजेस है उसको आप दूर करें, और उसके बाद आपके द्वारा और लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आ सकता है, क्या परिवर्तन आ सकता है, उस पर हम काम करें। जैसे ही हम लोगों को सर्व करना शुरू करेंगे, लोगों का फायदा पहुंचाना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ स्ट्रांग बननी ही बननी है। तो मैंने एक छोटे मोटे एग्जाम्पल से आपको ये 10 पॉइंट समझाए। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये 10 पॉइंट पे आप भी 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपके पास समय है निकालिए, 1 हफ्ते 10 दिन काम कीजिए, और 2022 मेक दिस ईयर माई ग्रेटेस्ट ईयर येट। मैं इस साल आई विल बिकम 47 ईयर्स ओल्ड, और क्यों ना ये साल मेरे जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल। हाँ, जैसा आज तक पिछले 46 साल में नहीं हुआ, वो सब कुछ इस साल होना चाहिए। दैट्स माई एम फॉर 2022, और यही एम मेरे ख्याल से हम में से हर एक का होना चाहिए। सो आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग विथ यू, ताकि आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं प्लानिंग की होगी, बट ऐसे अगर आप लिख के प्लानिंग करेंगे, मैं डायरी पे पूरा लिखा हुआ है, लिख के प्लानिंग करने से क्या होता है, वो चीजें लंबे समय तक हमारे जहन में रहती हैं। हम भूल गए, आई कैन अगेन रेफर एंड आई कैन अगेन टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, ऑल दोज प्लानिंग। ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं क्या मैंने प्लानिंग किया हुआ है इस लॉकडाउन के लिए। लॉकडाउन हैज कम, और जिस स्पीड से केसेस बढ़ रहे हैं, आप सबको भी समझ में आ रहा होगा कि शायद जनवरी के एंड तक या फरवरी में पीक आएगा, और पीक कैन गो अप टू 4 लाख केसेस पर डे। भले ही बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है, फेटल नहीं है, बट अगर लोग पॉजिटिव होंगे 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होंगे, तो कहीं ना कहीं भगदड़ केओस तो मचेगा। बॉम्बे से लोगों ने निकल करके आना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। यानी जनवरी फरवरी कम से कम 2 महीने तो हम मान के चलें कि हमें ऑनलाइन पे ही भरोसा करना पड़ेगा। शायद आगे चल करके हमारा बाहर निकलना भी बंद हो जाए, क्योंकि जब केसेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट उसको बंद कर देगी। तो ऑनलाइन इज द न्यू लाइफ लाइन। तो मैंने बनाया कि भैया अगला जो अभी लाइफ लाइन है वो ऑनलाइन है। हम माने ना माने, हमारे पास खासकर शिक्षकों के लिए और कोई उपाय नहीं है। तो मेरे दिमाग में क्यों आया कि पहला हम लोग क्या काम करें कि वी कैन टेक दिस करेंसिया ऑनलाइन थिंग, हम इसको ऑनलाइन ले जाएं। अब ऑनलाइन ले जाने के लिए क्या है कि भाई हमको चाहिए 2 चीजें। हमको चाहिए बच्चे जिनको हम पढ़ाएं। हर आदमी के पास अपनी भी क्षमता है। रंजीत सर कुछ और पढ़ा सकते हैं, राधा मैम का कुछ और अपना रहेगा पढ़ाने का स्ट्रेंथ, अंकित का अपना कुछ रहेगा पढ़ाने का, प्रणव सर का अपना रहेगा, गरिमा मैम का अपना रहेगा। हम सब के पास कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेंथ है जो हम बच्चों को, युवाओं को पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हम क्या पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। क्या हमारे पास एक बेसिक सेटअप है? हमारे पास या तो एक लैपटॉप हो या मोबाइल हो, जो कुछ भी हो, जिसके थ्रू हम लोगों को पढ़ा सकें। पहली बात, अगर हम पढ़ा सकते हैं तो पहले हम उसके बारे में लिखें कि भाई हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, हफ्ते में कितने दिन पढ़ाएंगे, महीने में कितने रोज पढ़ाएंगे, कितने घंटे पढ़ाएंगे। उसके बाद हम ये देखें कि भाई हम मैक्सिमम कितने लोगों का बैच बना सकते हैं, और उसको पढ़ाने के लिए हमें कितने रुपए की आवश्यकता होगी एज अ फी। हम फ्री भी तो नहीं पढ़ाएंगे ना, और कुछ भी काम करेंगे तो वी वांट मनी ऑल्सो। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि मेरे पास एक वीकली प्लेटफॉर्म है फॉर कम्युनिकेटर्स, डिस्कशन विद धीरज, जो कि मैं हर संडे को दोपहर 1 बजे आई रन इट, और हर संडे को 8, 9, 10, 11, 12 बच्चे उसमें जुड़ते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट चार्ज देम बिकॉज ऑलरेडी दे आर पेइंग माई फी। जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, आई चार्ज देम 49 रुपीज फॉर द सेशन। और हर हफ्ते 2, 3, 4, 5 बच्चे आते हैं, पेमेंट करते हैं एंड दे पार्टिसिपेट। अगर मैं मान के चलूं कि अगर मैं ये क्लास करता हूं 4 पूरे महीने में, हर संडे को 1, एंड आई नीड 2500 फॉर दीज 4 क्लासेस, और चूंकि जूम है आई कैन गो फॉर 100 पार्टिसिपेंट्स, 100 लोग इसमें जुड़ सकते हैं फ्री वाले जूम में। उसमें मैं फिक्स कर दूं कि भाई बोलने वाले 10 ही रहेंगे, बाकी 90 दे कैन बी पार्टिसिपेंट्स, दे कैन लिसन। और हर हफ्ते चेंज होगा, इस हफ्ते इस 10 ने बोला, फिर 10 ने बोला, एंड आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग, आई विल नॉट चार्ज एनीवन। पार्टिसिपेंट्स को मैं चार्ज नहीं करूंगा, और आई वांट 2500 फ्रॉम दीज क्लासेस। अब
जो अगला स्टेप आएगा कि एक बार जब मैंने ये प्लानिंग कर ली कि मैं ये क्लास लूंगा, इतने लोगों को मैं फायदा पहुंचाऊंगा, ये मेरी फी रहेगी, तो समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, दे आर लुकिंग फॉर सम सोशल सर्विस। तो मैं उनको बोलूं कि सर देखिए हमारे पास में 10 टीचर हैं, ये पढ़ाएंगे फिजिक्स फॉर क्लास 11-12, ये पढ़ाएंगे मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 4-5-6, ये पढ़ाएंगे ये स्पोकन इंग्लिश, ये पढ़ाएंगे फिलोसफी, ये पढ़ाएंगे हिस्ट्री, जिसका जो स्ट्रेंथ है। आप इसमें से किस क्लास को स्पॉन्सर करने वाले हैं? इनका ये नाम है, ये क्वालिफिकेशन है, ये पढ़ाएंगे और हम पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर हम सब लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने अपने नेटवर्क में अगर हम प्रमोट करेंगे तो बच्चे मिलना शुरू हो जाएंगे। बच्चे 1 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 100 मिलेंगे, मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ऑनलाइन पढ़ाने का काम शुरू हो जाएगा और हमको इस प्लेटफॉर्म से कुछ इनकम आना शुरू हो जाएगा, राइट? तो मुझे लगता है कि एक बार जब मैं प्रपोजल लेकर के जाऊंगा, जितने लोगों को मैं जानता हूं, तो आराम से मुझे ऐसे 10, 12, 15 लोग मिल जाएंगे जो कि महीने का 1000, 1500, 2000 की फंडिंग कर सकते हैं, ताकि समाज के हर बच्चे को ऑनलाइन फ्री पढ़ने का मौका मिल सके। ये मेरा अपना गट फील है। अभी तक मैंने बात नहीं किया बिकॉज पहले मैं आपसे बात करूंगा एंड देन आई विल गो टू दोज पीपल। तो मैंने एक डिसाइड कर लिया कि मेरा क्लास कैसा होगा, क्या मैं चार्ज करूंगा उसके लिए। देन मैंने बनाया एक स्नैपशॉट कि मेरे बारे में, मेरे में क्या खूबियां हैं, कहाँ से मैंने पढ़ाई की है, मैं क्या करता हूं, ताकि ये देखने के बाद जो आपके ऊपर स्पॉन्सर जो आपका है उसको लगे कि हाँ भाई इस व्यक्ति के ऊपर हम खर्च कर सकते हैं, अगर ये पढ़ाएगा तो समाज को फायदा होगा। और फाइनली उसका फोटो वगैरह, उसका क्या अभी तक अचीवमेंट है वो डाल करके एंड देन आई विल गिव इट टू देम, राइट? हो सकता है कि स्टार्टिंग का कुछ क्लासेस हमको फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़े, बिकॉज हमको दिखलाना ही पड़ेगा ना कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। हर क्लास की रिकॉर्डिंग हो जाएगी और वो रिकॉर्डिंग जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो अपना अपना यूट्यूब चैनल खोल लीजिए और उस पर उस अपने रिकॉर्डिंग को आप लोग लोड कर लीजिए, ताकि आपका एक अपना ई लाइब्रेरी भी बनता चला जाएगा। और जैसे आपने क्लास लेना शुरू किया, 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आई विल गो फॉर द स्पॉन्सर। स्पॉन्सर आपकी फी को स्पॉन्सर करेगा, सो यू विल बी अ पेड टीचर। और वो अपने सर्किल में, हम अपने सर्किल में कम्युनिकेट करेंगे कि भाई ये सर हैं, ये पढ़ाने वाले हैं, ये टाइमिंग है क्लास का और इसका कोई हम चार्ज नहीं ले रहे हैं। बच्चे उसमें आए, पढ़ें, आपका फायदा भी हो जाए, घर बैठे आप पढ़ा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बच्चों का फायदा हो जाए, और जिन लोगों को सोशल सर्विस करना है उनको एक जरिया मिल जाए कि शिक्षा के थ्रू वो सोशल सर्विस कर सकते हैं। तो यही मुझे लगा कि ये एक अभी बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि अब लॉकडाउन 21 तक का लगा हुआ है, आगे का क्या होगा नहीं मालूम है। इस आने वाले मंडे से सारे स्कूल, सभी लोग अब वापस ऑनलाइन बोर्ड में जाने का प्लानिंग भी कर चुके हैं। आई थिंक कल से सारे विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। बहुत सही समय है अपने आप को लॉन्च करने का। तो ये मेरा प्लान था फॉर कमिंग जनवरी एंड फरवरी। अब आप में से किसके पास क्या सुझाव है, आप दे सकते हैं। Sir, I have one question. Okay. Sir, if I have no big achievements like you and others, so what I can do? आपके पास जो भी अचीवमेंट है, वॉट एवर यू हैव डन एंड वॉट एवर यू कैन डू, आप मेंशन करेंगे। क्या होगा, आपके लिए स्पॉन्सर ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ होगी और कुछ नहीं होगा, बट नो प्रॉब्लम। Starting, I have not want any sponsors. So just I have video, and if students are satisfied, then anything is happening in future. कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाना शुरू कीजिए। कम से कम कुछ नहीं होगा तो कम से कम समाज सेवा तो होगा ही होगा, फॉर श्योर। ठीक है, और बताइए, और किन्हीं को लग रहा है इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं? गरिमा मैम, क्या ख्याल है आपका? तो प्लान और आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, आई लाइक इट। और जो शुरू में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वाला करेंगे, उससे जो भी अंकित अभी बोल रहे हैं
कि वो जैसा भी बच्चों को लगेगा वो अपने आप ही वो अगर उनको समझ में आएगा या पसंद आ जाएगा तो खुद ही कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए हो सकता है कि बाद में वो खुद ही बोलने लगे कि सर हम पे भी करेंगे लेकिन आप क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे बिल्कुल ये बिल्कुल एक मतलब हम लोग के साथ चैलेंज या फिर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं कि लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, यूट्यूब पे। जैसे ही ऑनलाइन हुई सारी चीजें, किड्स हैव आल्सो स्टार्टेड सर्चिंग हिंदी में, इंग्लिश में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, किसी क्लास के लिए। तो वी शुड ग्रूम आवर सेल्फ सो दैट कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर, भले ही वो 1 मिनट का हो, भले ही वो सिर्फ इतना हो कि अरे ये सर आते हैं तो इनका एंट्री ऐसा होता है, या फिर एक राइट ऐसा सेंटेंस जो कि बच्चों को मोटिवेट, मतलब कुछ ना कुछ एक एक्स फैक्टर हम लोग सब में रहना चाहिए जिससे कि वो आप बाकी सबसे डिफरेंशिएट कर सके, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। ये सुनना जितना आसान है उसका इम्पैक्ट बनाना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल। बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे एक क्लास के लिए, अगर उनको वो एक्स फैक्टर नहीं मिलेगा अगले क्लास में नहीं आएंगे। तो हमारा नहीं टेस्ट भी है कि क्या हम ऑनलाइन पढ़ाने के तैयार हैं। ट्रू ट्रू। और कल ही मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, ब्रेन का रिसर्च पे एक बुक लिखा है 12 रूल्स ऑफ ब्रेन। उसमें था कि जब भी आप सेंसेस, जितना ज्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं किसी चीज को सीखने में, वो उतना ज्यादा आपको याद रहता है। और दूसरा चीज कि जो पुराने इंफॉर्मेशन है, जो आपको, जो बच्चों को 100% पहले से पता है, उससे कनेक्टिंग अगर आप कोई न्यू इंफॉर्मेशन देते हैं तो उनको याद रहता है। तो अगर हम लोग बच्चों को इस तरीके से पढ़ाए कि उनको मेरा क्लास लेते लेते ही सब चीज याद हो जाए, डेफिनेशन हो या कोई फॉर्मूला हो, उसको इस तरीके से बताए कि याद हो जाए, तो भी बच्चे उस चीज को लाइक करेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और किन्हीं के पास मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका है अपने आप को स्टैब्लिश करने का। आप किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मेरे ख्याल से हम सब लोग इसलिए यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो हम कुछ ना कुछ टीचिंग में आ जाए अपने सुविधा के हिसाब से। जो टाइम आप देंगे उस टाइम पे हम बच्चों को ऐड करेंगे उसके अंदर। अगर अब बच्चों को रोकना वो आपका काम है, बच्चे को भेजना हमारा काम है, बच्चे को रोकना वो काम आपका है। राइट। और किन्हीं के मेरे पास ख्याल कोई से इस पे सब सवाल? लोग को एक ट्राई तो करना ही चाहिए, करना भले ही चाहिए। आपका इसमें अभी अभी लग रहा हो कि पता नहीं कितने दिन कंटिन्यू होगा, या जो भी कुछ दिमाग में है उसको छोड़ के एक ट्राई जरूर करना चाहिए। ट्राई फॉर योरसेल्फ, जस्ट सी व्हाट Done. यू आर रेडी टू लर्न और व्हाट यू कैन मींस यू आर एबल टू डू। आई बहुत थिंक बढ़िया बहुत बढ़िया। ट्राई तो करना चाहिए। और कोई? अयान सर, आपका क्या ख्याल है इसमें? सबसे पहले तो 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको, आपको भी, लोग को सभी भी लोगों को। हाँ, सबको दी सभी लोगों को। हाँ सर मेरा विचार ये है कि बहुत जबरदस्त आइडिया है। और सबसे पहले चीज कि जो भी लोग टीचिंग फील्ड में है, अभी लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो इधर वो ट्यूशन पढ़ा रहे हो या फिर वो स्कूल में पढ़ा रहे हो, क्योंकि अभी तक हम लोग हैं सर कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं फिजिकली, और हम लोग को ऑनलाइन की आदत नहीं है। और Correct. किसी भी चीज की आदत डालनी होती है, किसी भी चीज की आदत डालनी होती है, बगैर किए तो कोई पॉसिबल चीज है नहीं। अभी गरिमा मैम बहुत अच्छा चीज बता रही थी कि वो ट्राई करना चाहिए, बगैर ट्राई किए होने वाला है नहीं। तो अगर ट्राई और किया अच्छी जाए, बात क्या है कि आप ट्राई करेंगे अयान सर, तो आपको बच्चे पूरे वर्ल्ड से मिलेंगे। यू नेवर नो, यू नेवर नो। पूरे वर्ल्ड से मिल जाएंगे। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। अभी 1.5-2 साल पहले खान सर को कोई जानता नहीं था, शायद अगर वो पटना में है, और यहाँ पे मोतिहारी मुजफ्फरपुर में कोई नहीं जानता था, इक्का दुक्का लोग जानते थे। लेकिन देखिए उनका पढ़ाने की शैली इतनी अच्छी है कि मैं बेसिकली हमको तैयारी नहीं करने किसी चीज की, लेकिन अभी कोई वीडियो अगर फेसबुक पे आ जाए तो मैं देखता जरूर हूँ, मैं देखता जरूर हूँ, क्योंकि वो नॉलेज वाली चीजें हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेरे काम का है, तो वो चीज मैं देखता जरूर हूँ। तो इसी तरह कहीं ना कहीं पढ़ाते 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 शैली डेवलप होती होती चली जाएगी। और ऑनलाइन में जब हम भी पहली बार शुरुआत किए थे तो बहुत दिक्कत हुई थी, और अब इतना इजी हो गया है काम करना कि लगता है कि पहले ये चीज क्यों नहीं मिल गई, पहले मिल जाती तो और ज्यादा इजी हो जाता। तो यह है सर, अगर किया जाए तो बहुत बेटर रहेगा। सबको एक मौका मिलेगा बच्चों के साथ अपने को सेट करने का।
जी बिल्कुल, जहाँ मेरा सवाल है कि मैं क्या योगदान दे सकता हूँ इस पर, तो सब्जेक्ट से संबंधित तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट से अलावे लाइफ हो या फिर पर्सनल गोल्स हो या फिर किसी भी मैटर पे सबसे अच्छी बात क्या है कि जो जो पढ़ा सकते हैं आप उसमें आगे आ जाइए। अयान सर ने बोला कि आई कैन टीच देम अबाउट पर्सनालिटी और लाइफ गोल्स, गोल कैसे बनाना है, कैसे उसको अचीव करना है, हाँ, कैसे अपने प्रोफेशन में सफलता को प्राप्त करना है, यू कैन टीच दैट। आप अपने मॉड्यूल को खुद डिजाइन कीजिए, आप अपने टॉपिक को खुद नाम दीजिए और हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। राइट सर। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो सब्जेक्ट ही हो। आजकल तो ऑनलाइन तबला से लेकर गिटार से लेकर के ढोलक से लेकर के सब सिखला रहे हैं। नथिंग इज बिल्कुल फ्रॉम ऑनलाइन। और बताइए, और किसी के पास कोई राय है? Sir, Radha ma'am, you want to say something? yes, I want to say something. सर ये जो मतलब कि किसी टॉपिक को भी लेके पढ़, जैसे मैं प्राइमरी टीचर हूँ और मैंने 6, 7, 8 पढ़ा है, तो किसी भी टॉपिक को लेके भी पढ़ा सकते हैं। देखिए, आपको एक लंबी प्लानिंग से चलना पड़ेगा। यू थिंक कि ये क्लास पूरे 1 साल चलने वाला है, इस तरह से आप दिमाग में करिए। मतलब अगर कल को अगर स्कूल खुल भी गए, हम ऑफलाइन आ भी गए, अगर हमारे पास बच्चे हैं और वो ऑनलाइन पढ़ने के तैयार हैं, हम क्यों बंद करें? हम उसको चलाते रहें। जैसे कि मैंने ऑफलाइन होने के बाद भी अपना ऑनलाइन बंद नहीं किया, तो बंद नहीं किया तो फायदा मुझे ही है ना, कि वापस मैं तैयार हूं पढ़ाने के लिए। तो हम क्यों ना इसको एक लॉन्ग टर्म लेकर के एक अपना प्लेटफॉर्म सेट कर लें। लाइफ में जब तक हम पढ़ा सकते हैं तब तक ये प्लेटफॉर्म चलता रहे। लाइफ टाइम प्लानिंग करके आप शुरू कीजिए कि क्या ऐसा सब्जेक्ट है किस क्लास के लिए विच आई कैन टीच लाइफ टाइम। Yes, ma'am. Yes, sir. Now I got. Yes, sir. और बताइए, और कोई किसी के पास और कोई और कोई राय है किसी के पास में, और कोई सजेशन? सर ये क्लास कहाँ से करेंगे ऑनलाइन? सब अपने अपने घर से करेंगे। ऑनलाइन का फायदा यही है, आप अपने अपने घर से आप अपना खुद का लिंक जनरेट करेंगे। जैसे ही आपका कंफर्मेशन आ जाएगा, आई विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसके एडमिन आप ही रहेंगे। बच्चे को उसमें ऐड करना, बच्चे को लिंक भेजना, बच्चे को पढ़ाना, वो सब काम आपका ही रहेगा। आई विल बी जस्ट अ सपोर्टर। जहां भी आपको कुछ दिक्कत होगी, आई विल सपोर्ट, या घर में वहां पर रहेंगे सपोर्ट करने के लिए, राइट। लेकिन पूरा ड्राइव आपको करना पड़ेगा। जैसे ही आपका क्लास शुरू हुआ, 1 क्लास 2 क्लास आपने कर लिया, बच्चे सेट हो गए हैं, बच्चे आ रहे हैं, इमीडिएटली आई विल गो टू द स्पॉन्सर। मेरा पहला एकदम ध्येय है, मैं खुद चाहता हूं कि भाई मैं फ्री में काम नहीं करूं। मेरा एकदम बहुत क्लैरिटी है दिमाग में, क्योंकि फ्री के काम की वैल्यू नहीं है। सब चाहते हैं कि आपको पैसा मिले और जो लोग आपको स्पॉन्सर करें उनके लिए फायदा हो ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर आशीर्वाद आटा होता है, आशीर्वाद आटा, कि मैं इस क्लास को स्पॉन्सर करूंगा, तो हम वहां पर डालेंगे दिस क्लास इज स्पॉन्सर्ड बाय आशीर्वाद आटा। क्या दिक्कत है भाई? उसका अपना मार्केटिंग हो गया। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, जहां जहां हम उसको पब्लिश कर रहे हैं, वहां उसकी मार्केटिंग हो रही है और वो स्पॉन्सर्ड हो रहा है। तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी जो भी इसको स्पॉन्सर करेगा, दिस क्लास इज स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो पर्सन, ताकि बच्चों को मालूम हो कि भाई ये पढ़ाने वाले ये हैं और ये स्पॉन्सर है, राइट। तो फिर एक लंबे समय तक हमको, फिर अगर एक बार जो आपका स्पॉन्सर है, अगर उसको कंफर्म हो गया कि भाई ये क्लास बहुत ही बेहतरीन है, ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो आपको जब तक वो है, वो आपको फंडिंग करता रहेगा। आपको कोई पैसा इकट्ठा करने का कोई टेंशन है नहीं, पैसे आपको मिलते रहेंगे, बच्चे आएंगे जाएंगे, वो सब होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना मेंटेन कीजिए, आप अपना आगे बढ़िए। ये दिमाग में आइडिया कहां से आया, टेल यू। एक कंपनी है अमर उजाला, नाम सुना सब लोगों ने? अमर उजाला
अमर उजाला का अखबार है जो यूपी में बहुत ही फेमस है, अमर उजाला। अमर उजाला ने शुरू किया है सफलता एक्सप्रेस बहुत पहले से। सफलता एक्सप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग जुड़ते हैं और जिसको जो आता है वो पढ़ाते हैं। अभी आज की डेट में उनके पास पूरा करिकुलम है, नर्सरी से लेकर के और बैंकिंग, आईटी, मेडिकल, यूपीएससी, बीपीएससी, सब कुछ उनके पास में है। और चार्ज क्या करते हैं वो लोग? एक कोर्स का 250 रुपए बच्चों से। 250 रुपए में आप आईटी, मेडिकल, यूपीएससी कुछ भी कर सकते हैं आप। तो अमर उजाला इज अ बिग कंपनी। वो क्या करती है, अपने सीएसआर फंड से इसको फंडिंग करती है और बच्चों के लिए इसने एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है। तो मुझे समझ में आया कि भाई आगे आने वाले समय में ये ऑनलाइन भी बड़ा हो सकता है अगर हमारे पास हर तरह के लोग जुड़ते चले जाएं। राइट? और कोई डाउट किसी के पास? कोई डाउट, कोई सुझाव? नहीं? तो इसको लॉक किया जाए। तो मैं अभी क्या करूंगा, आई विल सेंड द पीपीटी इन द ग्रुप जो कि मैंने बनाया हुआ अपने लिए। उसमें जो मेरा नाम है वो हटा करके आप अपना अपना नाम डालेंगे, अपने अपने बारे में लिखेंगे और मुझे वो पीपीटी वापस भेज देंगे, ताकि आई विल मेक द मास्टर पीपीटी जो कि मैं भेजूंगा फिर सारे स्पॉन्सर्स को। उसमें जो भी उनको पसंद आएगा, भाई मुझे इस सब्जेक्ट के लिए प्रमोट करना है, वहां से हम पेमेंट पे शुरू करेंगे। जब तक हमको पेमेंट नहीं मिलता है तब तक हम इसको चलाएं एज अ फ्री, ताकि हमारा ये भी हो जाए ना प्रैक्टिस, हमारा कुछ हमको लगे कि हाँ ये काम हमसे हो सकता है। शुरू में ही चार्ज करेंगे तो लगेगा कि अच्छा भाई अभी तो सीखा भी नहीं। हाँ बताइए राधा मैम। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट कीजिए मैम। सॉरी सर, मेरा ये क्वेश्चन है, ये जो क्लासेस चलेंगे वो चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट चले या फिर वो पे होके चले, क्या डेली बेसिस पे चलेगा या फिर वीकली चलेगा? वीकली 3 डेज या फिर वीकली 2 डेज? ये सारा फैसला आपके हाथ में है। आप क्या पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, किस दिन पढ़ाएंगे, ये सब आपके हाथ में है। बट ओनली थिंग आई विल से कि आप इसको रखिए ओनली 40 मिनट्स। जो फ्री जूम सेशन है 40 मिनट्स का समय उतना ही रखिए। कितना पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, वो सब आपका लुकआउट है। आप कंफर्टेबल हो, समय आपका, दिन आपका, 40 मिनट्स का जूम सेशन। और बताइए, और कोई डाउट किसी के पास? नहीं? डन? ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया रहा और आप लोग अपना भेजिए एंड देन फ्रॉम बाय इवनिंग, अगर मुझे आज ही मिल गया आप लोगों का तो कल मैं इसको लॉन्च कर दूंगा इन द सेंस कि आई विल पब्लिश इट। और पहले बच्चे आपको मिलने चाहिए, कम से कम 2-3 बच्चे मिल जाए तो आपका क्लासेस शुरू हो जाए। आपका जो नेटवर्क है वहां भी आप डालिए। हम में से हर आदमी सब लोगों का मार्केटिंग करेगा, मतलब हम अपने अपने वॉल पे सब लोगों का जो पोस्टर है वो लगाएंगे। पोस्टर बनाने का काम मेरा रहा, आई विल मेक द पोस्टर, डोंट वरी फॉर दैट। पोस्टर बनाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, जिन जिन को मिलना शुरू हो जाएगा वहां हम काम करना प्रारंभ कर देंगे और 1 हफ्ते के बाद हम फिर इसको लेके चले जाएंगे अपने अपने स्पॉन्सर के पास में एंड वी आर गोइंग टू मेक इट अ बिग थिंग। सर जैसे कि अगर आप कुछ ऐसा सजेस्ट कर देते सब लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑनलाइन में बच्चों से आपकी 1-to-1 इंटरेक्शन भी होती है, क्लासेस ये सब, तो किस तरह का कंटेंट बच्चे ढूंढते हैं? अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी है तो किस तरह का कंटेंट, किस सब्जेक्ट में, या कोई जनरल चीज है तो किस पे बच्चे मतलब चाहेंगे सुना? देखिए, जो सबसे आसान काम है ऑनलाइन में, क्लास 9 से ऊपर बच्चे ढूंढना शुरू कर देते हैं। 9 से ऊपर साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज सब खोजते हैं। बच्चे ग्रामर खोजते हैं, बच्चे स्पोकन खोजते हैं। जो यूथ है, जो आपका ग्रेजुएशन में है, ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है,
आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, स्पोकन इंग्लिश, 9 से 12 साइंस, मैथ्स, उसके बाद इंटरव्यू कैसे फेस करना है, हाउ टू डेवलप पर्सनालिटी। उसके बाद बहुत से लोग जो बड़े एज के हैं, मीन्स आई एम टेलिंग 30+, 40+, दे ऑल्सो लुक फॉर क्या बोलते हैं आपका स्पोकन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। यानी कि कहीं कोई ये नहीं है कि कोई क्या खोज रहा है क्या नहीं खोज रहा है। हर किसी सब्जेक्ट का, हर किसी टॉपिक का कोई ना कोई मार्केट में स्टूडेंट है। डोंट वरी फॉर दैट, डोंट वरी फॉर दैट। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने लोग हैं, सब कोई ना कोई चीज खोज रहे हैं, कोर्स खोज रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या काम करते हैं? रिक्वायरमेंट बट सर ऐप नहीं यूज करना अंकित। आई थिंक इट विल बी लाइव, इट विल बी लाइव क्लास। जैसे सर, जैसे अभी कैसे हम लोग 1 to 1 बात कर रहे हैं, इसी तरीके से Correct. क्लास होगा। करेक्ट, इट विल बी लाइव क्लास। बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ पाए, आप उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब उससे भी ज्यादा अच्छा होगा कि अगर पीछे बोर्ड है कोई, तो बोर्ड पे लिख के बच्चों को बताए। वो कम्प्लीटली ये मतलब फ्री है आप कि किस तरह से यूज करना है। कॉपी पेंसिल लिख रहे हैं तो कैमरा को ऐसे रखे कि जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं वो बच्चों को दिखे, बस उनको समझ जाना चाहिए। अल्टीमेटली वो मैटर करेगा। मेरे ख्याल से आप एक काम कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे मेरे ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस हैं। अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ आई हैंडल, व्हाट आई डू। तो वहां से आप एक आइडिया ले सकते हैं। और भी किन्हीं के पास में ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस होंगे तो आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। वी कैन गो थ्रू इट। तो आई थिंक दैट्स इट। अब काफी नेट में तकलीफ दे रहा है, तो आई थिंक हमने एक इनिशियल हमने बातें कर ली हैं। इसके अलावा किसी के पास कोई डाउट रहेगा, यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉल गरिमा मैम, एंड वी विल हैंडल ऑल योर क्वेश्चन। ठीक है, so thank you very much, thank you everyone for coming and joining, and I think this Currencia online is going to become a very big thing in coming future. Yes, sir. Definitely. Bye, good day, thank you very much. Bye-bye. Bye, good day. तो सही कर रहे हैं। हमारा चिल्ला रहे हैं। मेरा क्लियर नहीं